for us to welcome each one of you for our evening devotion. Thank you so much for being here on time. Speed the light. All of you welcome and may the Lord richly bless. Let's all begin our devotion time with a song, and then we'll go time of prayer and then devotion. We serve a wonderful and a great God. और हम एक अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं. Shall we close our eyes for prayer? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं. Heavenly Father, we thank you for bringing us together this evening for a time of devotion. और परमेश्वर के पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं. आज शाम के समय हम सबको तू एक साथ लेकर आया तेरे वचन का अध्ययन करने के लिए. As we're in your presence, we pray that you would minister to our hearts. और जब हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे दिलों से तू सेवकाई को कर. And we know that when we hear your word, Lord, you are going to do
many great things in our lives. और हम जानते कि जब हम तेरे वचन से सीखते हैं, सुनते हैं, तू हमारे जीवन में महान कार्य को करेगा। Because your word has the power, creative power to do great and mighty things. क्योंकि तेरे वचन में सृष्टि करने की सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में तू कार्य करेगा। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह की इस नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. Amen. So Amen. welcome once again. Thank you for being here. May the Lord richly bless you. और आप सबको हम स्वागत करते हैं समय से आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष को दे। So we welcome Vinay Kumar, Jatin, Tilak, Rathika Biz, Benchina, and Pradeep, Rastogi, Mariam, all of you. Thank you. God bless each one of you. परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष को दे। So we continue with our study on purpose-driven life. और हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे हमारे जीवन का मकसद के संदर्भ जो अध्ययन कर रहे हैं। God has created us for a purpose. और परमेश्वर ने हमें रचा है एक मकसद के लिए। And the purpose that God has for each one of our life, the most important one is to bring glory to His name, and God has created us for His pleasure. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो रचा है उसके पीछे मकसद, सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये है कि हम अपने जीवन की उसको महिमा दे सकें और हम उसके लिए आनंद का कारण बन सके। That is why every human being has a desire inbuilt in that person, in every one of us, in every human being, a longing is there to worship. और इसलिए सारी मानव जाति के अंदर में एक ललक होती है कि आराधना किसी न किसी से, किसी रीति से परमेश्वर को दे। And that desire is put there, or that vacuum is put there by God Himself. और ये जो आराधना के लिए जो उनके दिल में जो खालीपन है, इस खालीपन को और कोई नहीं, परमेश्वर ने ये खालीपन उनके जीवन में दिया है। So until that is filled by a true God, by the presence of a true God, the search for that truth and the search for that God will always be going on. और जब तक मनुष्य उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं निकालता है, उसको आराधना देने के लिए और वो कोशिश करता है, वो सच्चाई की खोज को करता रहता है। So that is why it's very important for every child of God, everybody who knows the truth, to share the truth and tell others about the truth. और इसलिए हर एक व्यक्ति जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है और इसलिए उनके ये जो कार्य हो जाता है कि वो दूसरों को भी इस सच्चाई को बताने वाले हो जाएं। Still we are trying to understand what is worship. और हम समझने की कोशिश करें कि मतलब आराधना क्या है। Different people depending on their religious background or their whatever background they are from, they try to define worship in their own way. और फिर हम जानते हैं कि सारी मानव जाति अलग अलग पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि से होने के कारण वो लोग आराधना को अलग अलग रीति से परिभाषित करते हैं। Something that just the worship is singing, worship is praising, praying, listening to a sermon. There are so many things they would say as worship. और कई लोग जो आराधना को इस प्रकार से सोचते हैं कि गीत को गाना और वाद्य यंत्र को बजाना या तो फिर प्रार्थना करना, उसकी उपस्थिति में बैठना, अलग अलग रीति से लोग आराधना को परिभाषित करते हैं। And something that lighting of candles, communion, and other ceremonies, they think that as worship. और कुछ लोग सोचते हैं कि जो कि मोमबत्ती को जलाना या फिर प्रभु भोज लेना और फिर अलग अलग रीति से वो लोग आराधना को परिभाषित करते हैं। Something that great miracles, great healing, and all these ecstatic things happen at the time of giving glory to God, and think that is worship. और कुछ लोग आराधना को ये सोचते हैं कि जब महिमा परमेश्वर को देते हैं तो कोई अद्भुत कार्य होती है, चंगाई होती है, छुटकारा होता है और वो आराधना है। All this may include in worship, but worship is more than that. लेकिन ये सब इसके साथ शामिल है, लेकिन आराधना इससे और ज्यादा बढ़कर है। Worship is a lifestyle. और जो आराधना जो हमारे जीवन शैली है, And worship is more than music. और जो आराधना है वाद्य यंत्र से बढ़कर है। Because many people, for them worship is equal, or like it's a synonym of worship, और of music. और कई लोग ये सोचते हैं कि जो आराधना है वो वाद्य यंत्र के एक समान है, दोनों साथ साथ चलते हैं। Some people say that in our church we have first worship and then pastor comes and gives the message. और कुछ लोग को इस प्रकार की धारणा होती है कि जब हम कलीसिया जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं तो सबसे पहले हम गीतों गोगा के आराधना देंगे, उसके बाद प्रभु के दास के वचन को बताएंगे। This is a misunderstanding about worship. लेकिन ये आराधना के संदर्भ में हमारी जो गलत सोच और धारणा है। Every part of church service is an act of worship. लेकिन हम जान पाते हैं कि जो कलीसिया के हर एक जो कार्यक्रम है वो आराधना है। Praying, singing, reading
reading the scriptures, sermon, silence and being still, giving offering, all these are forms of worship. और फिर गीत को गाना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, प्रार्थना करना, और फिर शांत रह के प्रभु से कुछ आवाज को सुनना, ये सब वो आराधना का भाग है. Even baptism, communion, signing of a commitment card, or volunteering, it's all act of worship. और फिर बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना, और फिर कलीसिया के जो के लोगों की सेवा करना, और फिर वॉलंटियर काम करना, और जो भी परमेश्वर के कलीसिया से संबंधित कार्य, वो सब आराधना है. And we also know that the act of worship was there even before music was is given in the word of God. और हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया गया है कि जो वाद्य यंत्र आने के पहले ही आराधना था. We know that Adam worshipped God in the Garden of Eden. और हम जानते हैं कि अदन की बगीचा में आदम और हव्वा ने परमेश्वर को आराधना दिया. But the music is mentioned in the Bible only in Genesis chapter 4 verse 21 when it talks about music about Jubal after the birth of Jubal. और फिर जो वाद्य यंत्र के बारे में भजन संहिता 4:21 में दिया गया है, जब जुबाल की पैदाइश होती उस समय से वाद्य यंत्र आया. If worship is just music, then those who do not have music, then it's not a worship. So worship is not just music, though it's a part of worship. और फिर जो वाद्य यंत्र ही सिर्फ आराधना होता, तो जो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते वो आराधना के भाग में शामिल नहीं हो पाते. लेकिन आराधना ये है कि जो सब कुछ आराधना में जाती है वो है. And sometimes some people even relate to worship as a certain style of music. और कुछ लोग आराधना के प्रति इस प्रकार की धारणा को रखते हैं कि वो एक विशेष प्रकार के जो वाद्य यंत्र के द्वारा आराधना को करना. Some people say in our church we first have the hymn and then we have song for praise and worship. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि सबसे पहले आराधना में हिम गाना को गाना चाहिए, उसके बाद परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए वो प्रेज एंड वर्शिप के गीत को गाना चाहिए. For them praise is song, fast song they call it praise, and slow song they call it worship. और वो लोग जो गीत जो तेज गति में गाते हैं उसको महिमा में, और जो स्तुति है उसको धीमी आराधना की गीतों में लेते हैं. If they are using instrument of rhythm music, they call it as fast songs are called as praise songs, and then slow song just with a guitar, they call it as a worship song. और फिर वो लोग इस प्रकार से, कई लोग सोचते हैं कि जो गीत जो बेदारी की जो गीत गाया जाता है वाद्य यंत्र के साथ, वो जो महिमा के लिए हैं, और उसके बाद जो धीमी गति में आराधना देते हुए परमेश्वर को गीत गाते गिटार के द्वारा, वो आराधना के गीत So depending on the speed of the song, people think it is worship song or it's a praise song. So relate worship with these are all misuse of the term of the word we call worship. और फिर जो गीत जो तेजी से गाए जाती हैं, और वो जो आराधना की गीत जो धीमी गाई जाती है, वो जो परमेश्वर को स्तुति देने वाले, और ये सब जो कि आराधना का एक प्रतीक है. Worship is that we do something passionately to exalt the name of the Lord, to honor God, and that's something that this is our lifestyle. We continue to do it every time. लेकिन आराधना वास्तव में क्या है कि हमारे जीवन के द्वारा हम किसी भी रीति से परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि आराधना हमारे जीवन की शैली है. And the kind of music that you like, the song that you like depends on the background you are from, but every song, slow, fast, every song and every act of worship, God honors that, and those are acts of worship. और हम जो कुछ संगीत को हम पसंद करते हैं क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि उससे आई होती है, लेकिन किसी प्रकार का गीत क्यों ना हो, या फिर वो बेदारी की हो या स्तुति की हो, आराधना की हो, सारे गीतों के द्वारा परमेश्वर आराधना को लेता है. We need to know that there is no Christian music, but there are Christian lyrics are there, but there is nothing called Christian music. और फिर हम जानते हैं कि कोई भी एक मसीही संगीत नहीं होता है, लेकिन उस मसीही लिरिक्स होता है, उसको हम जान सकते हैं. So worship is not just music. और इस आराधना सिर्फ एक संगीत या संगीतमय नहीं है. What God desires from our lives is that worship has to become a part of our life. It has to be a lifestyle that we follow that bring glory and honor to God. और लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि सिर्फ गीत या संगीत हमारे आराधना नहीं, लेकिन हमारे जीवन एक आराधना हमारे जीवन की शैली बन जाना चाहिए, जिसके द्वारा हम हमेशा परमेश्वर को महिमा और स्तुति देने वाले हो जाएं. Remember, God has created us for His pleasure to
worship Him. और याद रखिए क्योंकि परमेश्वर ने बनाया इस मकसद के लिए कि हमारे द्वारा आराधना को ले और आनंद को वो महसूस करे, उस आनंद को ले। So worship is not for our benefit, but it is for God. और इसलिए जो आराधना है वो हमारे मुनाफे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए नहीं, ये परमेश्वर के लिए है। Some people come and say that, Pastor, today the worship was so wonderful, I got a lot out of it. और कई लोग आके इस प्रकार से कहते हैं कि 5 बार आज का जो आराधना बहुत ही अच्छा था, मैंने उसके द्वारा बहुत से आशीष को प्राप्त किया। This is another misconception about worship. और ये भी आराधना के प्रति एक गलत सोच है हमारे। It is not for our benefit. ये हमारे फायदे के लिए नहीं है। We worship God for His benefit, to give glory and honor to Him. लेकिन हम आराधना अपने लिए नहीं, लेकिन हम आराधना परमेश्वर को देते हैं, उसको हम महिमा स्तुति देने के So लिए। when we worship, our goal should be giving pleasure to God and joy to God, and God should enjoy it. और इसलिए जब कभी हम आराधना देते तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसको आनंद देने वाले, उसको महिमा देने वाले हैं। So if you ever said, I didn't get anything out of the worship today, that's a misunderstanding about worship, but because the goal of worship is honoring God, giving pleasure to God and giving joy to और God. इसलिए आज हमने एक बात को समझ लिया है कि जब भी हम आराधना है तो आराधना से हम कुछ प्राप्त नहीं करते, लेकिन आराधना के द्वारा हम उसको आनंद देते हैं, उसको महिमा देते हैं और उसको हम ऊंचे में विराजमान करते Our हैं। motive always should be, giving pleasure to the Almighty, that our worship will be honorable and acceptable and pleasing in the sight of God, to the heart of God. और हमेशा इसलिए हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, जब भी हम उसको आराधना देते हैं उसको महिमा देने वाले और उसको ऊंचे में उठाने वाले और उसके नाम को महिमा देने वाले होने। Remember in Isaiah chapter 28, God complains about the worship of people. और फिर यशायाह 28 पे परमेश्वर शिकायत करता है लोगों की जो आराधना के संदर्भ में। He says there are people who worship me half-heartedly, without wholehearted. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि लोग जो मुझे आराधना देते हैं वो पूरे मन से नहीं दे रहे, लेकिन वो अपने आधे मन के द्वारा मुझे आराधना दे रहे हैं। God calls that hypocritical praise. People becoming hypocrites where they would just honor God with their lips. और फिर वो कहता है कि ऐसे लोग जो पूरे दिल से मुझे आराधना नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो अपने मुंह से मुझे स्तुति और बलिदान And God देते हैं। says that He is against all kinds of those like insincere praise, empty words, and man-made rituals. All those God doesn't like. और इस प्रकार की जो बनावटी है, जो मानव अपनी मतलब दिखावे के लिए जो आराधना को देता है, उसमें से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। God's heart is touched not by rituals, but a passionate worship that we do unto Him with our passion and with our commitment. और परमेश्वर ऐसी आराधना से प्रसन्न होता है जो हम अपने जीवन के द्वारा बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ और पूरी इच्छा के साथ जब हम उसको देते हैं। Isaiah 29 verse 13 talks about it. और यशायाह 29 के 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। It says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. और यहाँ पे प्रभु कहता है ये लोग जो मुझ से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते, परंतु उनका मन मुझसे दूर है, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा के अनुसार सुनकर रीति रिवाज के अनुसार मुझे आराधना देते हैं। That is why God talks about worshiping God in spirit and in truth. इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो आराधना है वो सच्चाई और आत्मा में होना चाहिए। Not by ritual, not by rules or regulations taught by human being, but rather God pleases in worship, that we do with passion and commitment to the Lord. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो आराधना है वो रीति रिवाज नहीं और लोग अपने बनाए हुए कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन जब भी हम आराधना देते हैं आत्मा और सच्चाई से उसको आराधना दें। And also remember that worship is not a part of our life, but it is our lifestyle. और ये एक बात को अच्छी तरह से समझना है कि आराधना हमारे जीवन को ये एक भाग नहीं है, लेकिन आराधना हमारे जीवन की शैली है। Worship is not just for church services, but God asks us to worship Him continuously. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आराधना सिर्फ हम कलीसिया में दें, लेकिन हमारे जीवन के हर क्षण, हमारे हर समय हम उसको आराधना देने में हो In जाए। Psalms 105:4 says that, and praise Him from sunrise to sunset. और फिर 104 भजन संग्रह में इस प्रकार से लिखा है कि मैं सूर्य उदय से लेकर अस्त तक मैं उसे आराधना दूंगा। See, people in the Word of God, in the Bible,
they praise God all the time. और फिर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के लोग उसको हमेशा आराधना देते रहे। We see that people praise God at work, at home, in the jail, in different situations they were in the battle they praised God. In different situations they would praise God and honor God and worship Him. और हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं कि लोग हर एक जगह पे अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने घर में और अपने युद्ध भूमि में, कारागृह में, अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को आराधना देते रहे। So praise should be the first activity that we do in our day, and the last one, that also we need to praise Him throughout the day. We continuously praise Him. और हम अपने जीवन की शुरुआत को करें, दिन की शुरुआत को करें, उसको स्तुति महिमा देते हुए और पूरे दिन भर हम उसको महिमा देते रहे और अंत तक हम उसको करते रहे। David said, I will thank the Lord all time. At all times my mouth will always praise Him. और दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने जीवन भर और अपने मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा मैं हमेशा उसको स्तुति देता रहूंगा। And then 1 Corinthians chapter 10 verse 31 says, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. और पहला कुरिन्थियों उसके 10:31 में इस प्रकार से लिखा है कि जो भी तुम करते हो सब चीजों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो जाए। So everything that we do, every activity that we do can be transformed or changed to an act of worship. और फिर हम जो भी कार्य शैली को करते हैं, हर एक कार्यों के द्वारा परमेश्वर के नाम को आराधना देने वाले हो जाएं। Martin Luther said that a dairy maid or dairy maid can milk cows to the glory of God. और फिर मार्टिन लूथर ने इस प्रकार से कहा कि जो दूध देने वाली जो गाय है वो परमेश्वर को महिमा, तो लेने वाले ना, और जो सर्वेंट जो भी जो ग्वाला होता है जो उस दूध को निकालता है वो भी उसके नाम को महिमा देने वाले हो जाए। So how is it possible? और ये कैसे संभव है? That everything that we do, we do it unto the glory of God. और जो भी कार्य हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाए। And then Colossians chapter 3 verse 23 says, और कुलुस्सी 3:26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, that whatever you do, work it at all with all your heart as working for the Lord, not for men. और फिर उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो भी तुम कार्य करते हो वो कार्य परमेश्वर के लिए करो, ना कि मनुष्य को दिखाने के लिए। That brings glory to God. और वो परमेश्वर को महिमा ले आती है। Whatever job you do, आप जो भी कार्य को करते हैं, whatever things throughout the day that you do it unto the Lord. आप दिन भर में जो भी कार्य करते सारे कार्य के द्वारा उसको महिमा देने वाले हो Not to जाएं। please a human being, किसी भी इंसान को प्रसन्न करने के not to लिए please your employer, आप अपने जो कर्मचारी को प्रसन्न करने के not to लिए, please that somebody is watching over you, but to please God, because you are not doing it unto man, but you are doing it unto God. और किसी भी व्यक्ति को खुश करने के लिए कोई कार्य ना करें, लेकिन जो भी कार्य करें उस कार्य के द्वारा परमेश्वर को अब महिमा देने वाले हो जाए। Everything that we do, let it bring glory to God. जो भी हम कार्य करते हैं उस सारे कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। And that's what we see in Romans chapter 12 verse 1 also. और वही हम रोमी 12:1 में देखते हैं। He says, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around, everything, and place it before God as an offering. और Hallelujah. उस प्रकार से लिखा है कि जो भी कार्य तुम करते हो, खाना खाते, सोते हो और जहाँ कहीं भी जाते हो, सारे कार्य के द्वारा उन सारे मध्य में परमेश्वर को तुम स्थान को दो। So even work becomes worship when we dedicate it unto the Lord. और जब आप कार्य को एक आराधना के रूप में परमेश्वर के लिए समर्पित करते तब वो आराधना है। God has created me and you for His pleasure. और परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है उसके आनंद के लिए। So let us honor Him everything that we do. और इसलिए हम उसको आदर दे जो कुछ भी हमारे पास है। Let everything that we do be an act of worship unto Him and bring glory unto His name. और जो भी कार्य को करते, जो भी हम करते, सबके द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले हो God जाए। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We are coming back on Friday, coming Friday, and we are going to get into a new chapter. It's going to be exciting. I want all of it to be there before time. Thank you. God bless you. और अभी हम बाइबल अध्ययन के लिए आने वाले शुक्रवार को मिलेंगे और हम नए अध्याय को शुरू करेंगे जो कि एक बहुत ही प्रोत्साहित अध्याय है। आप लोग कभी मिस ना करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष Now दे। let's worship the Lord through this song, and then we'll spend some time in prayer also. आइए हम इस गीत को गाए, प्रभु को आराधना दे, उसके बाद कुछ समय प्रार्थना में समय को व्यतीत करें। Amen.
all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and I will sing your face with all of my strength. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Amen. Let this be our prayer that God, I am here. I surrender my life to you, and I do, commit my life and every action that I do in your hands, and let those be pleasing unto you. और यही हमारी प्रार्थना हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह मैं यहाँ हूँ, मैं अपने सारे जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ, और जो भी कार्य मैं करता हूँ सबके द्वारा तेरे नाम को आराधना और महिमा मिलने पाए. Thank you, friends, once again for joining us. We have Ramkesh Shavar, Jatin, and we have Jaypal Chauhan, Lelida Kujur, Sanchida Vishwas, and so many of you. Meena Sikdar, thank you for joining. Manvir, Mukesh, Purnima Prachapati, thank you. Hema Latwal, Marjit, Radhika Bis, Rajendra Bek, Clara, Mona Singh, all of you, thank you, and God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. We are going to spend some time in prayer. आइए हम कुछ समय प्रार्थना में समय को व्यतीत करें. You know, our God is a prayer answering और God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला है. Even this morning, as we are worshiping the Lord, we are giving many reports of God doing great and mighty things in God's children. और आज की सुबह भी जब हम आराधना कर रहे थे, कई हमने जो स्तुति के, जो धन्यवाद के, हमने गवाही को सुना. Remember, we have a prayer vessel and a praise vessel here. आप याद रखिएगा हमारे पास एक प्रार्थना का पात्र है और एक धन्यवाद का पात्र है. God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य है. So the prayer requests that are here, we pray for. God does great things, and God answers prayer, and they move into the praise vessel. और फिर प्रार्थना पात्र में सारे प्रार्थना निवेदन है, और जब परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेता है और वो सारे प्रार्थनाएं धन्यवाद में बदल जाती हैं. If you have a need in your life, don't be hesitant to send us your prayer needs so that we can continuously pray for और you. यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना के विषय है तो आप संकोच ना करिएगा, हमें भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. We have a prayer tower, and there's a team of about 200 people, for 24/7. Not all 200 pray 24/7, but few of them, like 5-6 of them, continuously pray for different needs. So if you send your needs, we'll send it to them, and they'll be praying for you. और हमारे पास जो कि करीबन 200 लोग हैं जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग 24 घंटे 7 दिन हम आप लोगों के विषय को लेकर प्रार्थना करें. इसलिए आप लोग अपने प्रार्थना निवेदन को भेजिएगा, आप लोग के लिए प्रार्थना की जाएगी. And also once God do that miracle in your life, you get the answer for your prayer. Don't forget to send us a praise report so that we can move your prayer needs to the praise report. और जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है तो भूलना चाहिएगा हमें सूचित करने के लिए, क्योंकि तब आपकी जो प्रार्थना की जो निवेदन इस पात्र से धन्यवाद के पात्र में हम डालेंगे. Shall we pray together? आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें. Our God is a faithful God. और परमेश्वर विश्वास योग्य है. I know that there are some prayer needs here, and there are many of you have some needs in your life. और हम जानते हैं कि कुछ प्रार्थना निवेदन हमारे पास है, और आप लोगों के पास भी कुछ प्रार्थना का विषय है. It doesn't matter that you're not able to send it to us, but God knows your need. हो सकता है कि आप हमारे पास तो पहुंचाए नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना की आवश्यकता को जानता है. And the presence of Jesus is right there in your home right now where you are. और आज रात्रि के समय प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति इसी वक्त आपके कमरे में है. And He's going to answer your need in your life. और वो आपकी जरूरत को आज सुनेगा. Just cry out to Him. आप सिर्फ उससे पुकारें. Say to the Lord Jesus. आप यीशु से इस प्रकार से कहें. Jesus, you are my Lord. प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है. You are my Savior. तू मेरा उद्धार करता है. This is my need. ये मेरी जरूरत है. I believe in you. मैं तुझ पर विश्वास And करता I हूँ. know that you are able to do it for me. और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे कार्य को करेगा. When you pray that prayer, और जब आप इस प्रकार की प्रार्थना God करते will do that miracle. परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा. Let's all pray together. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें. Loving Heavenly Father, we
we come before your throne of grace. और परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे दया के सिंहासन के तले आते हैं। We thank you for your presence in every home that are listening to us right हम now. धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति हर एक घरों में जो तेरे वचन को सुन रहे वहां पर Lord, है। at this time we pray for all the needs that are represented here. और इस समय प्रार्थना करते, जितने भी प्रार्थना के विषय मेरे पास है, हम सारे विषय को तेरे हाथ में समर्पण करते I हैं। pray that you would stretch forth your hand and touch, Lord, your people and do those miracles that they're looking for in their life. और हम प्रार्थना करते तेरे चंगाई के तेरे आवश्यक हाथ को उन लोगों के ऊपर बढ़ा कर उनकी सारी जरूरत को पूरा कर, उन्हें चंगाई को दे। Also, I pray for all your dear ones who are listening to me right now. और साथ ही साथ प्रार्थना करते जितने लोग आज शाम को तेरे वचन को सुन रहे हैं, And we together pray for all their needs, oh और God. हम एक साथ मिलकर उनकी सारी जरूरत के लिए प्रार्थना करते That हैं। you, by the Lord, by your stripes, we are healed, and by the power of Jesus, we have answered for all our needs. So we pray that you stretch forth your hand and touch your people and do those miracles and healing that your children are looking for tonight. और हम विश्वास करते हैं तेरे चंगाई के Hallelujah. हाथ को तो इस प्रकार बढ़ाकर उनकी तू Jesus. छुएगा, चंगाई को देगा, उनकी सारी जरूरत को तो पूरा करके उन्हें पूरी रीति से तू शिफा को देगा। Thank you, Jesus, for hearing us and answering हम us. धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुन के उत्तर दिया है। Cover all of us under your blood. हम सबको तेरे लोगों में तो सुरक्षित We रखे। give you the हम glory. तुझे महिमा देते हैं। Thank you, Jesus, for hearing us and answering us. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारी प्रार्थना सुन के उत्तर दिया है। In Jesus' mighty name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। And all of us together said, और हम एक साथ मिलकर कहें Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। You know, God is going to do great and mighty things in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म को करेगा। We have so many events throughout the week. Be in touch and also read the Bible. You know, spend some time there, read the Bible and spend some time in prayer. Be in touch, connected to the Lord, and God is going to speak to your hearts, and God is going to change your situation. If you are praying for a certain need, and there's going to be miracles happening in your life throughout this week. और इस पूरे हफ्ते में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे, हमारे साथ संपर्क में रहिएगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप लोग सब अपने बाइबल को प्रतिदिन पढ़िएगा, प्रार्थना में समय को व्यतीत करेगा, और जो भी आवश्यकता है प्रभु परमेश्वर को दीजिएगा। प्रभु आपकी आवश्यकता को पूरा And the करेगा। need that you have sent to us, some of you are facing some challenges in your job situations, and all those prayer need that you have sent to us, we are praying for you. Expect that miracle this week. God is going to do it for you, for His glory. और आप में से कुछ लोगों ने नौकरी के लिए अलग अलग विषय के लिए हमारे पास विषय को पहुंचाया, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए छुटकारा के लिए प्रभु आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमीन।